Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Oswal Pumps 3Q FY26 earnings call hosted by IIFL Capital Services Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touchtone phone. Please note that this call is being recorded. I now hand the conference over to Ms. Renu Baid from IIFL Capital Services Limited. Thank you, and over to you. Thank you. A very good afternoon, everyone. On behalf of IIFL Capital, I'd like to welcome the management of Oswal Pumps for discussing the third quarter FY26 earnings call. Today, from the management team, we have with us Mr. Vivek Gupta, Chairman and Managing Director, Mr. Shivam Gupta, Whole-Time Director, Mr. Subodh Kumar, Chief Financial Officer, and Mr. Sanjeev Sancheti, the Investor Advisor for Oswal Pumps. Without taking much time, I now hand the session to Mr. Vivek Gupta for his opening comment. Thank you, and over to you, sir. Yeah, hi, Sanjeev here. Thank you and good afternoon, everyone. It is my pleasure to welcome you to the Oswal Pumps Q3 FY26 earnings call. Joining me today on the call are the members of the senior management team of Oswal Pumps, Mr. Vivek Gupta, Chairman and Managing Director, Mr. Subodh Kumar, Chief Financial Officer, and Mr. Shivam Gupta, Whole-Time Director. Before we begin, I would like to draw your attention to the safe harbor statement included in the earnings presentation, which contains forward-looking statements and is also available on BSE and NSE websites. With that, I will now hand over the call to Mr. Vivek Gupta for his opening remarks. Over to you, Mr. Vivek. Thank you, Sanjeevji, and good afternoon, everyone. On behalf of Oswal Pumps Limited, I warmly welcome all of you of our Q3 FY26 earnings call, and thank you for taking the time to join us today. The third quarter of FY26 marked another period of strong operational execution and improvement in profitability, despite a competitive pricing environment across government-led solar pumping programs. During the quarter, the company reported a total income of 507.7 crore, delivering a strong year-on-year growth of 33.4%. Operating revenue for the quarter stood at rupees 501.1 crore, reflecting a healthy year-on-year growth of 31.9%. For the 9-month period ended December 25, total income stood at 1,569.2 crore, representing a robust year-on-year growth of 47%. Operating revenue for the 9-month period came in at 1,554.7 crore, growing by 45.9% year-on-year. This growth was primarily driven by consistent execution under the PM KUSUM scheme, continued traction under state-specific programs such as Magal Tela, and our ability to scale efficiently across multiple states. Operating EBITDA for Q3 FY26 stood at 127.1 crore, translating into an operating EBITDA margin of 25.4%, representing a sequential improvement of 164 basis points. For the 9-month period, operating EBITDA was 395.8 crore, with margins of 25.5%, while competitive tender pricing continued to exert pressure on margins, particularly government-led solar pumping programs. We are encouraged by quarter-on-quarter margin expansion, driven by value engineering initiatives, cost optimization measures, and early benefits from further backward integration. Operationally, we continue to strengthen our leadership position in the solar pumping ecosystem. As of January 31st, 2026, we have executed over 90,000 solar pumping systems under various government programs. Our current order book stands at over 24,500 pumps, comprising direct PM KUSUM, Magal Tela, indirect PM KUSUM, and export orders. Additionally, we have a strong near-term pipeline exceeding 25,000 pumps, providing healthy revenue visibility for the coming quarters. On the IPO objects front, I would like to share a brief update on our capital expenditure plans. Pump and motor plant, capacity expansion and automation. We expect to complete bulk of ordering towards capacity expansion
and automation of our pump and motors facility by Q4 FY26, with the entire CapEx program scheduled for completion by Q2 FY27. Solar module plant capacity expansion and backward integration. With respect to our solar module facility, we expect the first phase of expansion comprising 1 gigawatt of solar capacity to be completed by Q1 FY27. The remaining 0.5 gigawatt expansion is planned to complete by Q3 FY27 in line with our phased execution strategy. Looking ahead, the structural drivers for solar power irrigation remains firmly intact, supported by government focus on renewable energy, water security, and farmer income enhancement. Backed by our integrated manufacturing platform, expanding capacities, and proven execution capabilities, we believe Oswal Pumps is well positioned to capitalize on these policy tailwinds and deliver sustainable long-term value for all stakeholders. With that, I will now hand over the call to our CFO, Mr. Subodh Kumar, who will take you through the financial performance in more detail. Over to Subodh. Thank you, Vivek sir. Good afternoon, everyone. So now I will take you through the key financial highlights for the Quarter 3 Financial Year 26. I trust you have had a chance to review our earnings presentation and the financial disclosures. Mr. Vivek Gupta has already covered the top-line performance and EBITDA. So I will focus on the profitability, balance sheet parts, cash flow, and the other our outlooks. So starting with the profitability, profit before tax for Quarter 3 for the financial year 26 stood at 119.2 crore, translating into a PBT margin of 23.5%. This includes a one-time exceptional labor code impact of 1.9 crore. Excluding this item, normalized PBT would have been 121.1 crore with a margin of 23.8%, reflecting a healthy year-on-year growth of 16%. For the 9-month period, PBT stood at 370.7 crore. Adjusted for the exceptional item, PBT would have been 372.6 crore, delivering a strong 30.5% year-on-year growth with margin sustained at 23.7%. Moving to the bottom line, profit after tax for the quarter came in at 91.6 crore with a margin of 18%. For the 9-month, PAT stood at 283.7 crore, reflecting a strong 13.9% year-on-year growth and a margin of 18.1%. This level of profitability, despite pricing pressures over the last 2 quarters, clearly demonstrated the structural strength and resilience of our business model. Our deep backward integration, disciplined cost structures, frugal operating mindset continue to enhance cost competitiveness, protect margin, and reinforce lean efficient and manufacturing. From a balance sheet perspective, we continue to maintain a healthy and conservative financial position. As of December 31st, 2025, net debt stood at approximately 188 crore. Net debt to equity was 0.12x. Net debt to operating EBITDA was 0.36x. The sequential increase in net debt during the quarter was primarily due to higher working capital requirements, largely driven by delay in receivable from state nodal agencies under government-backed program such as PM KUSUM and etc. Importantly, this is purely operational and transitional in nature and not indicative of any structural changes in our leverage profile. On working capital efficiency, our cash conversion cycle stood at 177 days in December compared to 157 days in September, reflecting a 20-day increase quarter-on-quarter basis. This elongation was mainly due to receivable days increasing to 157 days from 138 days, driven by collection timing from government-linked customers. I would like to emphasize that these receivables are largely from government and government-backed entities and remain fully secure. Based on our historical collection experience and ongoing discussions, we expect payment cycle to normalize over the medium term, which should improve the cash conversion cycle, release working capital, reduce interest cost. Regarding capital allocations, IPO proceeds continue to be deployed strictly in line with the stated objectives, including capacity expansion, automation, backward integration, debt reductions. These initiatives will further strengthen margins, improve efficiency, and enhance returns ratio over the long term. Now, coming to the outlook, backed by strong order book, robust execution pipeline, favorable industry tailwinds,
we are maintaining our financial year 26 revenue growth guidance of around 50% year-on-year basis. Over the medium terms, we continue to target a 30 to 35% revenue on a CAGR basis. From a profitability standpoint of view, operating EBITDA margin of quarter 4 financial year 26 are expected in the range of 25.5% to 26%. PAT margin for financial year 26 are expected between 70.5% to 19%, supported by structural demand for solar pumping solutions, expanding manufacturing capacity, our integrated and cost-efficient business model. So note the last. With that, now we open for the questions. Thank you very much. Thank you. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. We'll take our first question from the line of Ashish Upganlawar from InvesQ PMS. Please go ahead. Yeah, thank you for this opportunity. I have a few questions. So first one would be, this receivables extension, is it to do with the Maharashtra government receivables, and what is the status on that? When are we expecting, and what is the hurdle on that right now? Okay. Hi Ashish ji. बेसिकली जो रिसीवेबल्स हैं डेफिनेटली महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के जो मांगल तेरा स्कीम है, अंडर दिस स्कीम ये रिसीवेबल डिले हुए हैं ड्यू टू महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के कुछ फंड्स इन्होंने AIIB बैंक्स हैं उनसे अप्लाई किए हुए थे, वो उनके सैंक्शन हो गए. कुछ सैंक्शन में थोड़े डिले हुए थे. वो एक प्रोसीजरल महाराष्ट्र का एक वर्क था स्टेट का, तो एक वो डिले था रीजन. सेकंड, ये मागलतेला जो स्कीम है ये पीएम कुसुम अंडर में तो है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट की एंटायर स्कीम है. तो इस पूरी स्कीम में स्टेट को अपने टोटल फंड को अरेंज करना है. सो वो थोड़ा सा इंटरनल अप्रूवल की वजह से इस पूरी स्कीम में महाराष्ट्र का फंड भी डिले हुआ है. बट नाउ स्टेट एजेंसीज ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, हमारे साथ बात भी हुई है और दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि उनकी फंडिंग भी AIB से अप्रूव हो गई है और वो कंटिन्यूसली इन लाइन चल रही है, आने वाली है. सेकेंड, इंटरनल अप्रूवल्स के फंड भी उनके इंतजाम हो रहे हैं. सो दे आर वेरी मच प्रिटी श्योर और नई स्कीम के साथ भी, नए क्वांटम के साथ भी वो और आ रहे हैं. तो आई थिंक ये इन लाइन अलाइन है सब कुछ. थोड़ा डिले हुआ है बट वी आर वेरी मच श्योर कि आने वाले कमिंग मंथ्स में ये बहुत तेजी से इम्प्रूव होगा. सर एक चीज समझना था कि एक मतलब 100 रुपए का अगर काम है तो उसमें हाउ इज द फंडिंग फ्रॉम द स्टेट साइड? यू मेंशन AIB का पार्ट होता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का खुद का पार्ट होता है एंड देन फार्मर का एक पार्ट होता है. तो ये कैसे डिवाइडेड होता है जनरली? ओके, देखिए वैसे अगर हम ओरिजिनली पीएम कुसुम को देखते हैं तो वहां पर 10% फार्मर शेयर है, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है और 60% में स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है. ये इस तरह का एक मैकेनिज्म बना हुआ है. बट इन केस ऑफ मागलतेला यहाँ पर 10% फार्मर शेयर है और 90% स्टेट गवर्नमेंट शेयर है. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इंस्टेंटली जब इन्होंने मागलतेला स्कीम को निकाला था, ये इंट्रोड्यूस किया था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर इसमें नहीं था. बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी एश्योर किया है, जो मुझे इंटरनल सुनने में आ रहा है कि हो सकता है ये मागलतेला स्कीम को भी पीएम कुसुम 2 की जो स्कीम आएगी उसके अंदर क्वांटिटी में मर्ज कर दे. सो वो पेमेंट अगर मर्ज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा 30% फंड भी इंतजाम होने वाला है. सो अभी स्टेट गवर्नमेंट अपने टोटल ओन फंडिंग रिसोर्सेज से ये फंड इंतजाम कर रही है. सर जहाँ तक थोड़ा बहुत हमें समझ में आ रहा था कि ये जो फंड्स है ये अप्रूव्ड होते हैं एंड जो सेस कलेक्शन होता है फ्रॉम अदर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दूसरों को जो लगते हैं उसमें से इसका फंडिंग होता है. सो इसमें पैसा अटकने का चांस और मे भी डिले होने का चांस ऐसा नहीं होता है. सो इसमें कहाँ ये दिक्कत हो गई है अभी? तो देखिए डेफिनेटली ये जो आप बोल रहे हैं आशीष जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. इसमें ऑलरेडी सब बिल्कुल प्री प्लान था. बट बिकॉज ये गवर्नमेंट के मैटर से इंटरनली हो सकता है गवर्नमेंट ने
के पास जो टोटल ट्रेजरी में फंड था वो फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरी वो किसी और स्कीम्स में यूज किया हो, वो गवर्नमेंट तो अपने इंटरनल फंड्स को कहीं भी रोटेट कर सकती है। तो वो इंटरनल मैटर है, इतना इंटरनली हम लोगों को डिटेल मालूम नहीं चल सकती, बट ये जरूर फेस किया है हमने पीछे कुछ टाइम से कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इस स्कीम के लिए पैसा सैंक्शन तो बहुत है, लेकिन ट्रेजरी में पैसा नहीं था जिसको उन्होंने आउटसोर्स किया है पैसा। तो नाउ दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हमारे पास पैसे का इंतजाम होना शुरू हो गया है और आने वाले कमिंग टाइम में हम आपको इन टाइम भी और पिछला पैसा जो है वो भी हम आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं। और इनफैक्ट इसी वीक में भी कुछ पैसा आ रहा है, नेक्स्ट वीक में भी आ रहा है, तो ऐसा अभी फंड स्टार्ट हो रहा है उनका। Okay, so ये problem limited to Maharashtra है, right? I mean, it's not there in other states that we work with. एक चीज हो रहा है आशीष जी, एक्चुअली अभी अगर हम देखते हैं ब्रॉडली तो सबसे ज्यादा बड़ा काम महाराष्ट्र ही कर रहा है पीएम कुसुम में अभी, क्योंकि एंड ऑफ पीएम कुसुम थी है और स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र सबसे ज्यादा एग्रेसिव है और बाकी जो स्टेट्स हैं क्योंकि बिजनेस बहुत कम है, बाकी स्टेट्स में बहुत ज्यादा नहीं है, मीडियम है, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट भी नहीं है। बहुत ज्यादा ये थोड़ा बहुत डिले तो हर जगह ही है, पर बहुत ज्यादा डिले महाराष्ट्र नहीं, हम ये बोल सकते हैं। ओके सर, वन मोर थिंग, पीएम कुसुम 2 का जो है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, मतलब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? ओके, देखिए पीएम कुसुम 2 प्राइमरीली हम लोग ये सोच रहे थे कि बजट में ये स्कीम इंट्रोड्यूस होगी, लेकिन जब बजट में इंट्रोड्यूस नहीं हुई तो हमें मिनिस्ट्री में हमने बात की तो उन्होंने कहा कि एज ए लीगल टर्म जब तक पीएम कुसुम 1 ये स्कीम पूरी फिनिश नहीं होती, हम पीएम कुसुम 2 ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकते हैं। और पीएम कुसुम 1 इसका जो टाइम पीरियड है वो 31 मार्च 26 तक है। तो जैसे ही ये पीरियड होगा, फिनांस डिपार्टमेंट ने पीएम कुसुम 2 की स्कीम को अप्रूव कर दिया है, जो कि बड़े अच्छे ढंग से, मॉडिफाइड ढंग से और बड़ी क्वांटम में एक्सपेक्टेड है, और जिसमें गवर्नमेंट और भी कुछ फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम भी ऐड किए, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे हम लोगों के लिए और ज्यादा रेवेन्यू क्रिएशन इसमें हो सकता है। सो आई थिंक एंड ऑफ मार्च और अर्ली अप्रैल वी आर एक्सपेक्टिंग दिस पीएम कुसुम 2। ओके फाइन सर। और एक और चीज था कि एक्सेप्ट मतलब महाराष्ट्र में जो जोर शोर से स्कीम चल रही है काफी सालों से, इवन हरियाणा, आई थिंक राजस्थान इज देयर, वी हैव सीन अदर स्टेट्स आल्सो कमिंग अप, सो उसमें कुछ बता पाएंगे कि बाकी स्टेट्स में व्हाट इज द काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस और क्या उनके प्लान्स है ओवरऑल? देखिए एक बात तो बहुत आशीष जी बहुत ज्यादा विजिबल है कि ये स्कीम हर स्टेट को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक फंड की प्रॉब्लम से भी जूझ रही है। तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो AIB बैंक से टाई अप किया है एक्सटर्नल फंडिंग से, तो ये हर स्टेट गवर्नमेंट को बहुत विजिबिलिटी आई है, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोगों से बात भी की है, और वो लोग उसी मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फंडिंग लेके किस तरह से हम लोग भी इस स्कीम को बहुत एग्रेसिव वे में अपने फार्मर्स को अच्छे ढंग से बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। सो आई थिंक सो पीएम कुसुम 2 में क्वांटम भी बहुत बड़े लेवल पे एलोकेशन आने वाला है, और एवरी स्टेट इज वेरी एक्साइटेड। तो मुझे लगता है नेक्स्ट पीएम कुसुम 2 का जो शेप, फिगर और जो साइज होने वाला है वो बिल्कुल एंटायर डिफरेंट होने वाला है, एंड वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। Okay sir, any guidance on the margins, how they will shape up for you? I mean, कुछ commentary है उसके ऊपर? देखिए जैसे हमारे CFO साहब ने बताया कि मार्जिन्स में वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग। डेफिनेटली पिछले कुछ टाइम हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहे हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो मेटल प्राइसेस भी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, और टेंडर्स भी कंटिन्यूसली, जो 2 पीछे टेंडर आए हैं उनमें प्राइसिंग का बहुत बड़ा प्रेशर था, प्राइसिंग काफी स्लैश हुए। इवन देन हमने वो सबको, हमारी टीम ने बहुत वैल्यू इंजीनियरिंग की है और कुछ चीजें एड ऑन भी किए हैं, और कुछ हमने अपने सप्लायर से बेनिफिट लिए हैं। तो वो सब अगर हमने एक्यूमुलेट किए हैं तो ओवरऑल बहुत बड़े पैट मार्जिन पे अगर हम देखेंगे तो बहुत थोड़ा इम्पैक्ट ही आ पाया है हमारे, मे बी 1% तक, मे बी 1 और 1.2 1.3% तक का
इतने सब चैलेंजेस के बाद आया है। सो आई थिंक कि प्रॉफिटेबिलिटी इसी रेंज में या थोड़ा बहुत इससे प्लस रेंज में हम रहने वाली है। मतलब यहाँ पर हमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं दिख रहा है अभी तक जो विजिबिलिटी आ रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष जी। Thank you. We'll take our next question from the line of Karthik Bhatt from LFC Securities. Please go ahead. Good evening, sir. Congratulations on good set of numbers. So I had first question. So any commentary on the PM Kusum 2.2 allocation? So it has been in line with the revised estimate of 5,000 crore. Okay. Hi कार्तिक जी। कार्तिक जी ऐसा है, देखिए जो बजट में 5,000 करोड़ की एलोकेशन हुई है, इसको हम प्रैक्टिकली एक अनाउंसमेंट के तौर पे नहीं देख रहे हैं। हम ये एक कॉन्टिन्यूशन है हर साल की एक बजट में, इसका एक एलोकेशन है। मेजरली जो पीएम कुसुम 2 अनाउंस होने वाला है, उसकी जो विजिबिलिटी आएगी, उसका जो फंड एलोकेशन है, वो मिनिस्ट्री से हमारी कॉन्टिन्यूसली हम लोग टच में है, पूरी इंडस्ट्री टच में है। और उन्होंने बहुत क्लियर इंडिकेट किया है कि जब तक 31 मार्च तक ये पीएम कुसुम 1 की स्कीम खत्म नहीं होगी, तब तक हम लोग ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं कर सकते। और इनफैक्ट पीएम कुसुम 2 में बहुत ऐसी चीजें मॉडिफाई की गई हैं जिसमें इंडस्ट्री चाह रही थी कि वो मॉडिफाई की जाए, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड, वॉल्यूम साइड भी जो इंटरनली हमारे पास न्यूज है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं और एलोकेशन ऑफ फंड्स भी बहुत इस स्कीम को बहुत अच्छे लेवल पे दिए जाएंगे। सो गवर्नमेंट इज वेरी पॉजिटिव और गवर्नमेंट बहुत अच्छे प्लान लेके पीएम कुसुम में आ रही है। तो यहाँ पर कोई गैप या कोई भी कंसर्न मुझे नहीं लग रहा है कि पीएम कुसुम 2 को लेके है। Okay. So Just want to add, can I just add one point here which is important, Sanjeev here. So if you look at the way the budgets have been in the past given, if I go back to 24-25, the budget was 1496. Then actual performance was 2525. So they did a revised estimate of 2525. Was 2525. तो क्या हुआ कि एक्चुअल बजट 1496 था, एक्चुअल अचीव हुआ 2525। तो उन्होंने 2526 का बजट 2600 किया। अब 2600 का बजट 2526 में एक्चुअल अचीव हुआ करीब 5000 करोड़, विच इज अ रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो इन्होंने इस साल भी 5000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है। बट बजट हैज नॉट बीन द लिमिटेशन ओवर द लास्ट 2 years. Every year the actual allocation has been almost double of the budget. So budget cannot be the indicator of what volume will come in the future. Of course, we will take it to the next level, which we have to wait as giving the announcement. I just wanted to share this. Thank you. मैं भी ऑप्टिमिस्टिक इस बात में। सर अभी तक कंपोनेंट सी के ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं आया ना, अभी वो 2.0 के बाद ही आने वाला है शायद, है ना सर? देखिए सर, ऐसा है, कंपोनेंट सी में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अभी तक कंपोनेंट सी में बहुत इफेक्टिवली काम नहीं हुआ था। और इनफैक्ट अगर कंपोनेंट सी हो और वहां पर काम हो तो वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। हमें कंपोनेंट सी या बी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए पूरी टीम इज 100% कैपेबल फॉर एंटायर कंपोनेंट बी एज वेल एज सी। तो अगर लेकिन जो मुझे सुनने में आ रहा है कि कंपोनेंट सी विल बी मोर क्लियर देन एज पर लास्ट स्कीम। तो अगर वो बहुत क्लैरिटी के साथ आती है तो इट विल बी अगेन, ये हमारे लिए अच्छा सिग्नल, अच्छा एक साइन होने वाला है कि हमें एक और स्कीम में ज्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। बी में तो है ही, हम सी में मिलेगा। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस कि अगर बहुत क्लैरिटी से आती है तो। मैं लास्ट क्वेश्चन सर, कोई अपडेट है क्या सर आपका जो अभी अपकमिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, हेलिकल पंप, पीसीपी या फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप, अभी वो किस स्टेज में है? क्या वो लॉन्च के लिए तैयार है? और उसके अलावा उसका मार्केट साइज क्या है? सर सॉरी, आप कार्तिक जी एक बार दोबारा रिपीट करेंगे अपने क्वेश्चन को? सर आपका जो अपकमिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, जैसा हेलिकल रोटर पंप, पीसीपी, इंडस्ट्री सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसका अभी क्या अपडेट है? और उसका मार्केट साइज क्या है? ये एक्सपोर्ट फोकस है या फिर डोमेस्टिकली कैसे करने वाले हैं? ओके, देखिए जो हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ हेलिकल पंप्स की, सो वो पंप हमारा पिछले क्वार्टर में भी हमने काफी हद तक डेवलप कर लिया था। इनफैक्ट
डेवलप किया तो मार्केट में हम लोग उसको लॉन्च की प्लानिंग में भी है, बट थोड़ा सा उसके अंदर जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट है, जो हमें चाहिए कि हम मार्केट में, जैसा ओसवाल हमेशा से करता है कि जो मार्केट में ऑलरेडी पंपिंग सिस्टम चल रहे हैं उनसे बेटर रिजल्ट, बेटर क्वालिटी, बेटर परफॉर्मेंस है, तो वो एक जो चीज सेटिस्फेक्शन है वो उस लेवल पे नहीं आ रही है। तो अभी हमारी पूरी टीम उसको ऑब्जर्व कर रही है उसके परफॉर्मेंस को, और थोड़ा सा टाइम ले रही है कि कब उसको राइट टाइम पे ऑब्जर्व करें। बट प्रैक्टिकली ये प्रोडक्ट हमने डेवलप कर लिया है, सो बहुत जल्दी उसको हम लॉन्चिंग स्टेज पे लेके आने वाले हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, एनी कमेंट्री ऑन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप अभी जो बिडिंग में हो रहा है? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप अभी जो बाकी कंपनी जो बिड कर रहे हैं, लाइक नया कंपनी अभी आके अच्छा बैक कर रहे हैं, गुड साइज ऑफ फॉर्म। ओके, देखिए कार्तिक जी, बेसिकली क्या है, एक बात तो बहुत क्लियर है, जैसे जैसे किसी भी स्कीम्स के वॉल्यूम बढ़ते हैं कंपटीशन वहां पर आता ही है, और डेफिनेटली इस स्कीम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं। सो वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज इसलिए नहीं है कि ओसवाल पूरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी कैरी कर रहा है, नंबर 1 पॉइंट। हमारे पास पूरा सर्विस सेटअप, टोटल हर चीज, प्रोडक्ट का बैकवर्ड इंटीग्रेशन और बहुत बड़ी टीम एक्सपर्टीज के साथ इन हाउस सब कुछ फैसिलिटीज है। सो और मार्केट का शेयर भी ओसवाल सबसे बड़ा, एक आज के दिन में बहुत बड़ा शेयर मार्केट में कैरी कर रहा है, और कॉन्टिन्यूसली ओसवाल इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर की जो इंडिया में हर एक स्टेट्स में, मैक्सिमम स्टेट्स में जहां भी टेंडरिंग आ रहा है या जहां भी पीएम कुसुम इंट्रोड्यूस हो रहा है, हर स्टेट में हर जगह प्रेजेंट होने की कोशिश कर रहा है और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है। तो जो हमारी कंपनी के टारगेट्स हैं, जो हम सोच रहे हैं कि हमें इस लेवल पे पहुंचना है, ये ग्रोथ लेनी है, उस ग्रोथ के लिए मुझे नहीं लगता है कि हमें कंपटीशन में किसी तरह का कोई भी दिक्कत आने वाली है। डेफिनेटली प्राइसिंग ये सब कंपटीशन में आएगा तो ओसवाल विल बी द लास्ट सफरर, आई कैन से विल बी द लास्ट पर्सन कि जो अगर किसी तरह का प्राइस में या सिस्टम में सफर करने वाला है, अगर बहुत स्टीप कंपटीशन आता है तो भी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू कार्तिक जी। Thank you. Next question is from Anand Kulkarni from Front Wave Research. Please go ahead. Hi, thank you for the opportunity. I had a couple of Anand, can you use your handset mode, please? Your audio is not very clear. Is it better now? तो सर लाउड, आनंद जी लाउड बोलना पड़ेगा सर आपको थोड़ा। अभी बेहतर है सर आवाज? हाँ थोड़ी बेटर है, थोड़ी बेटर है। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द नंबर ऑफ पंप सोल्ड इन दिस क्वार्टर, और उसका मिक्स क्या है बिटवीन सोलर एंड नॉन सोलर एंड एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक? ओके, एक मिनट। टोटल सोलर पंप ये है 20,463। टोटल सोलर पंप्स हमने जो इस क्वार्टर में सेल किए हैं वो है 20,463। ये हमने इंस्टॉल किए हैं, ये डायरेक्ट इस क्वार्टर में। अच्छा, ये जो डायरेक्ट एंड मागलतेला में हमने टोटल इंस्टॉलेशन ऑफ पंप्स है 20,463 पंप है, 20,463 पंप्स। एंड व्हाट अबाउट एक्सपोर्ट नंबर्स एंड ऑल दिस? नहीं, ये डिफरेंट बोल रहे हैं। ये टोटल नंबर्स है ना, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्सपोर्ट, एवरीथिंग। ओके, 20,463, ठीक है। अब इसमें बताइए आप इसकी बाइफरकेशन। अगर फिर इसके नॉन जो अगर मैं इसमें जो सोलर पंप जो डायरेक्ट है, मतलब टर्न की जो सोलर पंपिंग है उसमें 2,541 पीएम को समझ जाता है जो डायरेक्ट मतलब। हाँ। और मागलतेला में है आपके 14,299 अराउंड। जो पीएम कुसुम एंड मागलतेला में जो गवर्नमेंट टेंडर के हमने टन की बेसिस में किया, अराउंड 17,000 पंप्स के अराउंड है जो इंस्टॉल किए हैं आनंद जी। एंड रिमेनिंग पंप्स हैं 3,623 जो कि अदर पीएम कुसुम प्लेयर्स को उनको सप्लाई किया। यस आनंद जी। ओके सर, और एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक ये आपने 20,463 का बाइफरकेशन दिया, एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक। नॉन सोलर एग्री पंप और नॉन सोलर नॉन एग्री है, दोनों को मिला के 14,581 वो अदर है। इसके अलावा ना? हाँ, डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्ट मार्केट। हाँ जी, हाँ
domestic and export market 14,581 pumps. 14,581. इसमें एक्सपोर्ट्स कितने थे या ये एक्सपोर्ट का क्लियर है सर? इसमें एक्सपोर्ट का बाइफर्केशन है आपके पास? एट प्रेजेंट आनंद जी इमीडिएट हमारे पास एक्सपोर्ट इसमें 14,000 में कितने नंबर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में है वो नंबर अभी इमीडिएट अवेलेबल निकाल सकते हो, ये वेट करके मैं देता हूँ. ओके, इट विल टेक लिटिल टाइम. मैं आपको 10 मिनट बाद आपको ये अपडेट कर देता हूँ नंबर. इतना मीन टाइम हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ओके, मेरा सेकंड क्वेश्चन था सर, जो अभी आपने गाइडेंस दिया मीडियम टर्म का 30 to 35%, तो जो हमारा करंट ऑर्डर बुक है कंस्ट्रक्टिंग पाइपलाइन, ये इंक्लूड करके हमें रेवेन्यू विजिबिलिटी दे रहा है या उसके अंदर जो FY27 में भी एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स है वो बेकिंग किया है सर ये गाइडेंस में? नहीं, देखिए अभी 24,500 जो पंप है ये हमारे पास ऑर्डर इन हैंड है, जो कि हमारा Q4 बिल्कुल क्लियर इंटैक्ट है जो हमने विजिबिलिटी दी है. और 25,000 नंबर जो पाइपलाइन में है जो कि एक्सपेक्टेड टू कम है. सो वो हम नेक्स्ट क्वार्टर अपकमिंग क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं कि इसका PM कुसुम 2 के रोल से अलग है. मतलब PM कुसुम 2 आएगा, उसमें जो नंबर्स आएंगे वो अलग से एड ऑन होने वाले हैं. सो ये वो नंबर बताए जो नंबर की क्लियर PM कुसुम 2 के बिना विजिबिलिटी आ रही है. ओके सर, अंडरस्टूड. थैंक यू. थैंक यू आनंद जी. मैं आपका इस क्वेश्चन का भी हेलो कार्तिक जी, आनंद जी, अराउंड एक्सपोर्ट के नंबर थे इसमें अराउंड 2,000 नंबर. Okay, sir. Thank you. We'll take the next question from the line of Aditya Vora from Soham AMC. Please go ahead. Yeah, thank you for the opportunity. Good afternoon, Vivek ji and Subodh ji. So मेरा 2 क्वेश्चंस है. एक, आई वाज लुकिंग एट द रियलाइजेशन. आपने जो 3Q के नंबर्स दिए हैं उसमें अगर हम सोलर पंप के रियलाइजेशन भी देखें और नॉन सोलर पंप्स के रियलाइजेशन भी देखें, दे हैव सिग्निफिकेंटली गॉन अप. जैसे मैं मैथ्स कर रहा था तो आपके जो सोलर पंप के रियलाइजेशन है वो 170 से 2 लाख रुपीस हो गए और नॉन सोलर पंप के जो रियलाइजेशन है वो 35,000 से 53,000 हो गए. सो कैन यू जस्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड कि ये इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? जैसे एवरेज प्राइस है मेरा सोलर पंप का, दैट इज फ्रॉम 172 लाख आ रहा है, और जो नॉन सोलर पंप है उसका एवरेज प्राइस 25,000 से 50,000 के बीच में आ रहा है. इसमें तो 5 HP 3 HP और 7 HP का कॉम्बिनेशन. देखिए 2 बातें हैं. मैं आपको पहले सोलर पंपिंग के बारे में बताता हूँ. सोलर पंप के प्राइसेस के जो रियलाइजेशन है वो डिपेंड करता है कि किस किस एरिया में क्या क्या हार्स पावर के पंप और रेटिंग के पंप के ऑर्डर हमें मिलते हैं. कि कभी अगर 3 हार्स पावर के रेटिंग के ऑर्डर मिले तो डेफिनेटली रियलाइजेशन कम होगा. 5 हार्स पावर के ऑर्डर मिले तो रियलाइजेशन थोड़ा ज्यादा होगा. 7.5 के मिले तो एक तो रियलाइजेशन में ये डिफरेंस हमेशा आता रहेगा. सेकंड, डेफिनेटली अगर हम पंपिंग सिस्टम की बात करें जो टर्नकी प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर पिछले 2 क्वार्टर्स में जैसे मैंने पहले बताया कि टेंडर्स के प्राइसेस भी डाउन हुए हैं. सो वो भी एक रियलाइजेशन रियलाइजेशन करीब दोनों टेंडर में अगर 13-14% तक इफेक्ट आया प्राइसिंग का, तो वो एक रियलाइजेशन का डायरेक्ट इफेक्ट है, तो वो भी आएगा. और जो हम नॉन सोलर पंपिंग है, अगेन चूंकि हमारे पास बहुत बड़ी रेंज ऑफ पंपिंग है, एक्सपोर्ट्स में भी है, ये वेरी करता रहता है एग्रीकल्चर सीजन के हिसाब से भी, नॉन एग्रीकल्चर सीजन के हिसाब से भी, एक्सपोर्ट में भी. डिफरेंट कंट्रीज अगर हम नई कंट्रीज में एक्सप्लोर कर रहे हैं सो वहां पर कई बार हमें बहुत बड़े पंप्स के ऑर्डर मिलते हैं, कई बार मीडियम टर्म के पंप के ऑर्डर मिलते हैं. सो ये वेरी करता रहता है क्योंकि हम लोग 0.5 HP 0.5 हार्स पावर से लेके अराउंड मोर देन 100 HP तक के पंप्स बनाते हैं. सो डिफरेंट एरिया में रिक्वायरमेंट आती रहती है. ये थोड़ा वेरी करता ही रहने वाला है, या कभी सीजन टू सीजन भी वेरी करता है. राइट. सो बेसिकली आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट मिक्स के वजह से आपका रियलाइजेशन ये क्वार्टर में बढ़ गया है. राइट. डिस्पाइट द फैक्ट दैट आपके जो उनकी PM कुसुम में थे वहाँ पे 2 क्वार्टर से रियलाइजेशन कम हो रहे, बट बिकॉज योर अदर प्रोडक्ट मिक्स इज गोइंग मच फास्टर, आपके ब्लेंडेड रियलाइजेशन बढ़ रहे. राइट. एब्सोल्युटली राइट. श्योर. थैंक्स. सो सेकेंडली मुझे थोड़ा इंडस्ट्री में थोड़ा स्ट्रक्चरली समझना था दैट कंसिडरिंग दैट ये स्पेशली महाराष्ट्र में थोड़ा पेमेंट का इश्यू है.
So how do we look at it? Could there be a possibility that ये अगर और ज़्यादा delay हुआ, तो will we have to not take further incremental orders from Maharashtra? Because आपका working capital currently तो कोई pressure में नहीं है because you've raised funds and also आपकी liquidity position काफी अच्छी है. But as you go ahead, could there be a possibility that your receivables comes at the expense of your sales, where आपका receivables बढ़ते जा रहे हैं और एक point पे आप additional incremental sales नहीं आएगा, आपका growth में issue हो जाएगा? Worst case scenario कैसे हो सकता है? Okay, आदित्य जी आपने बहुत relevant question पूछा है. तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा. हम लोग बहुत ही ज़्यादा बैलेंस शीट को कंपनी के ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं. एवरी मंथ एवरी टाइम हम लोग करते हैं. हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी की वर्किंग बैलेंस वे में रहे. ऐसा ना हो कि हम सिर्फ रेवेन्यू के लिए रिसीवेबल्स को बढ़ाते जाएं. इसलिए हम कॉन्टिन्यूसली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टच में भी होते हैं. उनका इंटरनल भी हम डिस्कस करते हैं कि उनके पोजीशन क्या है. और इधर से जब हमें ये कॉन्फिडेंस होता है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली टेंडर और निकाल रही है और स्टेट गवर्नमेंट के प्लान आगे सोलर पंप के लिए बहुत बड़े हैं, और हमें लगता है कि टेम्परेरीली हम इतने लेवल तक हमारी बैलेंस शीट और हमारे इंटरनल एक्रूवल्स और हमारे एक्सटर्नल फंडिंग हमें सपोर्ट कर सकती है. हम यहाँ तक एक आप सच टाइप ऑफ रिस्क बोल दीजिए कि हमें कैश फ्लो के इतने रिस्क हम जा सकते हैं. अदरवाइज हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, वी आर वेरी मच श्योर किसी तरह के स्टेट गवर्नमेंट्स में पेमेंट्स को लेके हिस्टोरिकल भी हमारे पास बहुत अच्छे डाटा अवेलेबल है. नंबर 1 पॉइंट. सेकंड, एज पर सीएमडीज और जो ऑफिशियल्स हैं उनके जो कमिटमेंट लेवल, उनकी जो विजिबिलिटी लेवल और जितने एग्रेसिव प्लान्स हैं, उसको लेके भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि ये सब एक बहुत टेम्परेरी फेज है जो कि हमें करना है. और इस टेम्परेरी फेज में शायद एक अच्छी बात भी है आदित्य जी कि जो हमारे जैसे प्लेयर हैं जो पेशेंस के साथ चल रहे हैं, जो आगे एक फ्यूचर विजिबिलिटी देख रहे हैं, तो अगर हम डिपार्टमेंट को सप्लाई में हर चीज में सपोर्ट कर रहे हैं, तो कल को डेफिनेटली डिपार्टमेंट भी ये सब विजुलाइज करने वाला है कि ये लोग जिन्होंने हमें ड्यू टू लैक ऑफ फंड या फंड की एक टेम्परेरी दिक्कत थी और टॉप ऑफिशियल्स की इस प्रोग्राम को इन कंपनियों ने सक्सेस करने में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है. सो डेफिनेटली कंपनी डिपार्टमेंट के सॉफ्ट कॉर्नर्स ड्यू टू क्वांटम, ड्यू टू बिजनेस के लिए आने वाले टाइम पे हमारे पास फेवर में रहने वाले. सो वी आर क्वाइट वेरी कॉन्फिडेंट कि हम कॉन्टिन्यूसली अपनी बैलेंस शीट की तरफ, अपने फंड इंटरनल अप्रूवल्स, ये सब की तरफ बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे रहे हैं. और यू रेस्ट एश्योर कि सर ये आप ट्रस्ट हमारे कंपनी पे कर सकते हैं कि कंपनी बॉटम लाइन को लेके, टॉप लाइन को लेके, हर चीज को लेके बहुत विजिबल है और बहुत विजिलेंट भी है. Right. So thank you so much for that. Just related question to that. हमारे पास जो रिसीवेबल्स है दिसंबर के और जो रिसीवेबल डेज है दिसंबर के और आज फरवरी है, सो लास्ट 1.5 महीने में हैज थिंग्स इम्प्रूव्ड डायरेक्शनली? नहीं, देखिए अभी अगर हम टिल टुडे तक बात करें तो थिंग्स बहुत अच्छी इम्प्रूव नहीं हुई है. लेकिन अगर हम ये बात करें कि अगले 10 दिन में, अगले 15 दिन में तो बहुत अच्छी इम्प्रूव होने वाली है. ये बिल्कुल इंडिकेशन हमारे पास 2 दिन पहले ही डिपार्टमेंट से आ गया था कि ऑलरेडी हमारे पास फंड आ गया है और हम आपको फाइलें बन रही है, आपके फंड अच्छा खासा रिलीज कर रहे हैं. और मार्च तक 3 बार वो फंड रिलीज करने की उन्होंने हमें बात की है. तो मुझे लगता है कि मार्च तक हम ये तो नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा फ्लो आने वाला है, बट हमें दिक्कत नहीं आने वाली है कि किसी तरह के रिवेन्यू के प्लानिंग करने में या कोई चीज करने में. मुझे नहीं लगता कि हमें और ज्यादा हमारा फंड इन्फ्यूज होने वाला है, जो विजिबिलिटी मुझे इस क्वार्टर में आ रही है. राइट. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. आई विल कम बैक. थैंक यू आदित्य जी. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ शशिकांत फ्रॉम ब्राइटर माइंड इक्विटी एडवाइजर. प्लीज गो अहेड. गुड आफ्टरनून सर. हेलो सर, ब्राइटर माइंड से बोल रहा था मैं. सर बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन है कि अपना इन्वेंट्री डेज इस क्वार्टर में कितना रहा टोटल? 36 डेज. इन्वेंट्री डेज हमारा इस क्वार्टर में 36 डेज. टोटल नॉर्मली कितना होता है साइकिल में एवरी, मतलब क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें तो? हमारा क्वार्टर बेसिस और नॉर्मल साइकिल में 30 to 36, मतलब इन 30 to 40 डेज आप मान.
ओके ओके सर, दूसरा चीज ये है कि अभी जैसे कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ी हैं, जैसे हमारे लिए इनपुट कॉस्ट है, कई कॉपर हो गए, स्टेनलेस स्टील हो गया, तो इसका मतलब क्या इम्पैक्ट रहा मतलब हमारे फाइनेंशियल पे? क्या हम पास ऑन कर देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के टेंडर्स है वहाँ तो हमारी फिक्स प्राइसिंग होती है मोस्टली? नहीं, देखिए शशिकांत जी, डेफिनेटली गवर्नमेंट के किसी टेंडर में भी हम पास ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि जो टेंडर जिस दिन हमने लिया होता है उस दिन के बाद के वो टेंडर जब तक खत्म नहीं होता तब तक रेट एप्लीकेबल मोरलेस 1 साल तक एप्लीकेबल होते हैं, नंबर 1 पॉइंट। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे 2 क्वार्टर्स में खासतौर पर बहुत चैलेंजिंग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस, जो डाउन गए हैं टेंडर में, नंबर 1। सेकेंड, कॉमोडिटी मेटल के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे हैं। ये दोनों ही चीज हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रही है, लेकिन कुछ हद तक हम लोग इसको एंटिसिपेट कर पा रहे थे। हम इंट्यूशन में थे कि ऐसा आने वाले टाइम में होगा। सो हमारी टीम कॉन्टिन्यूसली वैल्यू इंजीनियरिंग पे काम कर रही थी, 1 पॉइंट। कुछ हमने वैल्यू इंजीनियरिंग से वहां पर कवर अप किया है। सेकेंड, हमने कवर अप किया है जो हमारे सप्लायर्स थे, कुछ हमारे सप्लायर्स ने भी सपोर्ट किया है कि हमने उनको बड़ा बिजनेस दिया है। कुछ हमने अपने सप्लायर्स को कंसोलिडेट भी किया है। जो सप्लायर्स हमें ज्यादा बेनिफिट दे पा रहे थे तो हमने कुछ बिजनेस छोटे सप्लायर से डाइवर्ट करके बड़े सप्लायर्स पे भी डाइवर्ट किया। सो ऐसे कुछ स्ट्रेटेजीज बना के कंपनी ने हर उस एंगल से कोशिश की है कि जितना भी हम इसको नलिफाई और न्यूट्रलाइज कर पाए अपने प्रॉफिटेबिलिटी को, तो वो कर पाए। तो अगर हम देखेंगे ये जो इफेक्ट 15-16% का था, इसको हम न्यूट्रलाइज करके 1-1.25% तक ही अपनी बैलेंस शीट पे लेके आए हैं। सो ये एक रही है। तो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट। और अभी तक के टाइम में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इफेक्ट मेटल को लेके और प्राइसिंग को लेके आ चुका है। अब आगे कोई भी नए टेंडर्स आएंगे तो वो नए प्राइसेस में ही हम लोग फिलअप करेंगे, तो वहां पर वो चैलेंज नहीं आएगा। सर दूसरा को ये था सर कि अपना जो मार्केट शेयर है इस टोटल जो अपना पीएम कुसुम है उसके अंदर में क्या होगा सर, मतलब टोटल मार्केट शेयर? देखिए, अगर हम टोटल इंस्टॉलेशन, अगर मैं बात करता हूँ कि आज तक पीएम कुसुम 1 में टोटल इंस्टॉलेशन ऑफ पंप क्या है, तो तकरीबन मुझे लगता है कि 10 लाख पंप के आसपास के पंप की टोटल इंस्टॉलेशन है। आउट ऑफ दैट अराउंड 25 से 28% के बीच में हमारा 28% के बीच में टोटल डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा शेयर होगा। सर अभी जैसे कुसुम 2 ओपन होने वाला है, जैसा आपने बताया अप्रैल मई में मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे होएगा, तो अभी करंट जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है इंडस्ट्री के अंदर में बिडिंग्स को लेके वो कैसी है सर? मतलब अभी भी उस सेम लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, कुछ कमी है इन टर्म्स ऑफ बिडिंग? अभी 2 चीजें हैं। अगर कॉम्पिटिशन की बात करता हूँ, कॉम्पिटिशन इन टर्म्स ऑफ बिडर्स की बात करता हूँ, तो डेफिनेटली मैं ये बात कहूंगा कि नंबर ऑफ बिडर्स शायद और भी आ सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम के प्रॉफिटेबिलिटी को लेके या जो ऑलरेडी हम लोग हैं, हम लोग की बैलेंस शीट को लेके बहुत लोग अट्रैक्ट तो हो ही रहे हैं। सो नंबर 1 पॉइंट। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि बिडर्स नहीं आएंगे, लेकिन जो प्राइस कंपटीशन है, प्राइस कंपटीशन मुझे लगता है कि अगर कोई प्राइस कंपटीशन आया तो वो प्रॉफिट पे बहुत इम्पैक्टफुल नहीं होगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली या तो सप्लायर्स से वो बेनिफिट लेके आएंगे अल्टीमेट, क्योंकि एक रॉक बॉटम तक प्रॉफिटेबिलिटी आ चुकी है। फिर भी अगर ऐसा कोई मिसहैप होता है कि अगर और भी ज्यादा कंपटीशन आता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी कंपटीशन आएगा, एक बात बिल्कुल तय है और 100% क्लियर है, ओसवाल विल बी द लास्ट सफरर। क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सबसे ज्यादा हर चीज सर्विस हो या किसी तरह के कोई भी फैसिलिटी हो, वो सब इन हाउस अगर कोई इंडस्ट्री में कर रहे हैं, तो ओसवाल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री, कि जहां पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है, जहां पर सबसे अच्छी वैल्यू इंजीनियरिंग भी ओसवाल कर रहा है, सबसे अच्छे सर्विस नेटवर्क भी इन हाउस है, सेल्स, इंस्टॉलेशन, ये टीम ओसवाल की इन हाउस टीम है। तो उसकी वजह से हम लोग बहुत लंबे तक सरवाइव करने वाले हैं और अच्छा प्रॉफिट बनाने वाले हैं, ये मुझे लगता है, इन स्पाइट ऑफ कॉम्पिटिशन। ओके, बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू शशिकांत जी। Thank you. Next question is from Surbi Sarawgi from NCML. Please go ahead. Thanks for taking my question. Sir, Surbi, can you use your handset mode, please? Is it better now?
Yes. Little better. Please go ahead. Okay, so my question is that supposing in case PM Kusum 2 does not get launched in April, it gets delayed a bit more, then what will be the driver for our for the growth in revenue, and what are the growth rates that we are expecting for financial year 27? Okay. देखिए सुधी, एक बात तो बहुत क्लियर है कि अगर पीएम कुसुम 2 जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन किया, अगर बाय चांस डिले होता है या नहीं आता है तब क्या सीन है. सो डेफिनेटली कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी सोचना शुरू कर दिया है, और हम चूंकि हमारे पास वो सब चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है कि हम इसे कनेक्टेड लाइंस में लाइक पीएम सूर्यघर में हम लोग अपने ट्रायल्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं, और उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो जितना ऑलरेडी हमारे पास है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में एक नया वर्टिकल जो पीएम सूर्यघर का है वो भी हम ओपन कर रहे हैं. सेकंड, हम अपनी एक्सपोर्ट टीम को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि एक्सपोर्ट का भी टाइम, एक्सपोर्ट की भी जो पाइपलाइन है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा सके. थर्ड, जैसे हम हमारे प्राइवेट मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, उसके अंदर नेटवर्क और उसकी नई स्ट्रेटेजीज भी बना रहे हैं कंपनी, ताकि आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर में वो एक वर्टिकल भी हम बहुत स्ट्रेंथन करेंगे अपार्ट ऑफ सोलर. और प्राइवेट सोलर पंप की मार्केट भी बहुत एग्रेसिवली ओपन कर रहे हैं, जिसकी तरफ अभी तक हम बहुत कैजुअली चल रहे थे, जो कि अब एक पूरे वर्टिकल की तरह कंपनी ने बनाया है. तो ये सब कंपनी ऑलरेडी स्टेप्स को एक टेकन केयर किया है कंपनी ने. प्लस अपार्ट ऑफ ऑल दीज, हम चूंकि हमारी सोलर की जैसे मैंने बताया कि हमारी कैपेसिटीज अप्रैल में 1 गीगावाट की एड ऑन हो रही है, उसके बाद 0.5 गीगावाट की वो भी एड ऑन हो रही है. इन केस अगर पीएम कुसुम डिले होता है तो जो हमारी सोलर कैपेसिटी होगी वो हम वहां भी एक अलग वर्टिकल स्टार्ट करेंगे. अगर इन केस पीएम कुसुम डिले होता है तो वहां पर ईपीसी का एक जो बड़े बड़े रोकटॉप्स हैं, बड़े बड़े सिस्टम है, वहां पर भी हम अपना वर्टिकल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क, हमारे पास टीम एक्सपीरियंस वो ऑलरेडी है, जिसको अभी तक पीएम कुसुम की वजह से हम नेग्लेक्ट कर रहे थे और हम उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे थे. इन केस वो अगर डिले होता है तो डेफिनेटली वो भी एक वर्टिकल है. तो मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं डायरेक्टली एज्यूम कर लेता हूं कि पीएम कुसुम डिले होता है तो बहुत बड़ा इफेक्ट है. कि डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि इफेक्ट आएगा एक बार, पर वो टेम्परेरीली होगा. मे बी H1 तक इफेक्ट आए, H1 तक, लेकिन अदरवाइज हम आने वाले टाइम में अदर वर्टिकल को लेके ग्रो करने वाले हैं, और मे बी अगर ऐसा हुआ थोड़ा बहुत प्रॉफिट में इम्पैक्ट आ सकता है, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि आएगा. और कंपनी बहुत एग्रेसिवली इंटरनली काम कर रही है उनके वे आउट पे. थैंक यू शुभ. Okay, sir. Great, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Next question is from the line of Gaurav Shukla from Finvestors. Please go ahead. Gaurav, please go ahead with your question. सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ, यस. हेलो गौरव जी. नमस्कार सर. बेसिकली मेरे सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, लेकिन यही पीएम कुसुम 2 के विषय में ही पूछना चाह रहा था कि क्या रहेगा और अगले साल का मार्जिन गाइडेंस. ओके, देखिए गौरव जी, डेफिनेटली अगर आप हम अपने व्यू पॉइंट से बात करें तो हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव हैं. पीएम कुसुम 2 बहुत अच्छे लेवल पे आने वाला है जैसा इंटरनल न्यूज है, और इसको ऐसे लेमन लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि बैंड बाजे बारात के साथ आएगा और बड़े धूम धड़ाके के साथ आएगा, और हम इंटरनल बहुत तैयारी कर रहे हैं. अच्छी बात यह है कि इस डिले होने से एक डेफिनेटली मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा आपसे. डिले होने से एक अच्छी बात ये हुई है कि हमारे मन में भी एक डाइवर्सिफिकेशन का पॉइंट आया है, और हमने इंटरनली ये सोचा है कि कंपनी को अब आने वाले टाइम में डिफरेंट वर्टिकल्स में और ज्यादा डाइवर्सिफाई किया जाए, ताकि किसी भी तरह से आने वाले फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम अगर डिले होती है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे टोटल रेवेन्यू पे ना आए. तो ये है. अदरवाइज पीएम कुसुम 2 को लेके, डिनायल को लेके तो 0.1 भी हमारे अंदर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. डिले है डेफिनेटली, पर डिनायल नहीं है. नंबर 1 पॉइंट. सेकंड, रही मार्जिन्स की बात, अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे
तो मार्जिन पे कंपनी ने ये जो ईयर है हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ मार्जिन बड़ा स्ट्रेसफुल रहा है, बट वो स्ट्रेस हमने कहीं भी बैलेंस शीट में मार्जिन में नहीं आने दिया। उस पर बहुत वैल्यू इंजीनियरिंग किया, बहुत काम किया। इनफैक्ट अभी भी कॉन्टिन्यूसली हमारी टीम काम कर रही है। तो किसी तरह का भी प्राइस मार्जिन या प्राइस स्ट्रेस को लेके हम कोई बहुत स्ट्रेस में नहीं होने वाले, क्योंकि हमारे पास सबसे अच्छी फैसिलिटीज है एंटायर इंडस्ट्री, और कॉन्टिन्यूसली हम काम करेंगे। तो वो प्राइस को लेके वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। प्रॉफिटेबिलिटी को लेके भी बहुत बड़ा गैप नहीं आने वाला। ओके सर, जो हमारे पास रिसीवेबल अभी है वो पूरा स्टेट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का है कि कुछ सेंटर का भी है? मतलब मैं वो जानना चाह रहा था कि बाइफरकेशन ऑफ रिसीवेबल। ओके, देखिए गौरव जी, हमारे जितनी भी, चूंकि ये पूरा प्रोग्राम सेंट्रल ड्रिवन है, बट हमारे जो बेनिफिशियरी है वो स्टेट है, तो हमारी जो भी बिलिंग होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को होती है। ठीक है, सो हमारे रिसीवेबल सब के सब स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही है, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड, डेफिनेटली मेजर जो रिसीवेबल्स है महाराष्ट्र के हैं। अगर हम टोटल रिसीवेबल्स में से अराउंड 70% 75% रिसीवेबल देखते हैं, सो अगेन महाराष्ट्र के हैं, तो डेफिनेटली। ओके सर, एंड सर FY27 में ग्रोथ क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? मतलब किस रेवेन्यू ग्रोथ या पैट ग्रोथ? गौरव जी, यहाँ पर मैं दो बात करूंगा। Q1 डेफिनेटली अगर जैसे 31 मार्च पे या अर्ली अप्रैल में PM कुसुम 2 आता है, तो थोड़ा सा Q1 स्लो जा सकता है, बट ये भी बहुत अर्ली है इसको कहना कि स्लो जाएगा या अच्छा जाएगा। इट्स नॉट वेरी, क्योंकि पार्ट ऑफ कुसुम 2 के अलावा भी कंपनी के पास विजिबिलिटी बहुत अच्छी है ऑर्डर्स की, तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई गैप आने वाला है। फिर भी तो गैप बहुत ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि आएगा। और क्या, मैं क्वेश्चन ही भूल गया आपको क्या था? FY27 के लिए ग्रोथ, मतलब जैसे आपने FY26 लगभग 50 to 60 बोला था, के लिए ग्रोथ में इनफैक्ट मुझे अभी तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं लग रहा है कि हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है। अगर PM कुसुम 2 जैसे अभी सुरभि जी ने बात की थी, अगर मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि ये बिल्कुल ही डिनायल हो जाता है, तो डेफिनेटली हो सकता है बहुत बड़ी ग्रोथ ना ले पाए, पर फिर भी हम जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको बहुत अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगे, ये मुझे लगता है। लेकिन ऐसा होना सिर्फ एजम्पशन हो सकती है कि PM कुसुम 2 नहीं आएगा, ये सिर्फ डिले हो सकता है, ना आने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टेक्स हैं, पूरी इंडस्ट्री के स्टेक्स हैं। तो गवर्नमेंट किसी भी तरह का ये काम नहीं कर सकती, और जितनी हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी बात हुई है, उनके भी डिस्कशन, उनके फ्यूचर प्लान्स, उनकी बहुत बड़ी विजिबिलिटी को देख के भी नहीं लगता कि किसी तरह का कोई भी गैप हो सकता है। तो वी आर ऑलमोस्ट वी आर 100% श्योर ये स्कीम बहुत अच्छी तरीके से आने वाली है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपके जो कमेंट्स हैं उन्हीं पे डिपेंड रहते हैं। थैंक यू गौरव जी। देखिए आप लोग, मैं एक चीज का जरूर कहूंगा, बेसिकली आप और हम अब एक फैमिली मेंबर की तरह हो गए, फैमिली की तरह हो गए। सो मैं, आपने मुझे एक काम के लिए रखा हुआ है, बिठाया हुआ है कि आप लोगों के बिहाफ पे मैं कंपनी के लिए काम करूं। सो आई कैन डेफिनेटली से कि पूरी इंटीग्रिटी के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ ओसवाल उस ओनरशिप को निभाएगा और निभाता रहेगा, और वो हमारा कमिटमेंट भी है। इन स्पाइट ऑफ एक्सटर्नल कोई चीजें ऐसी होती है जो हाथ में नहीं हो, वो एक भगवान के हाथ में या ऊपर वाले के हाथ में होती है। अदरवाइज हमारी एफिशिएंसी को लेके या इंटीग्रिटी को लेके ये मैं 100% श्योरिटी दे सकता हूँ अपने सब। मैं आप सबको फैमिली मेंबर ही बोलूंगा कि हमारे पूरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली को, कि वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट आवर फ्यूचर, अबाउट ऑल आवर फ्यूचर। सो ओसवाल बहुत इंटीग्रेटेड काम कर रही है और बहुत अच्छे फ्यूचर में कर रही है। टेम्परेरीली टाइमिंग कोई बीच में टर्बुलेंस आती रहेगी, ये बिजनेस है, बट लॉन्ग रन में मुझे कोई टर्बुलेंस नहीं दिख रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू गौरव जी। Thank you. We'll take our next question from the line of Rudraksh Kalra from MP Investment. Please go ahead. Good afternoon. Good afternoon, Rudraksh जी। मेरा क्वेश्चन है मैनेजमेंट से, अभी हमारे कैश फ्लोज बहुत ही ज़्यादा
रेजिलेंट नहीं है, हम बहुत इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं जैसे हमारे डेटर डेज बढ़े हुए हैं, रिसीवेबल्स बढ़े हुए हैं, पहली बात तो मैं ये जानना चाह रहा था शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या प्लान कर रही है इसको मोर रेजिलेंट बनाने के लिए, और आर वी लुकिंग एट इनवॉइस डिस्काउंटिंग, इज दैट एन ऑप्शन अवेलेबल विद द कंपनी? या देखिए, डेफिनेटली जैसे ये इसके बारे में पहले शायद आनंद जी ने क्वेश्चन या आदित्य जी ने पूछा था, मैंने जवाब दिया था। सो एक बात तो क्लियर है कि जितना भी कैश जो की दिक्कत है, ये एक टेम्परेरी फेस है, ये एक लॉन्ग टर्म फेस नहीं है, जो कि मुझे लगता है इस क्वार्टर एंड में भी थोड़ा सा बेटर होगा। और फर्स्ट क्वार्टर से तो मैं बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। और इसके अलावा जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग है, ये सब डेफिनेटली एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी बैंकिंग से चल रही है। सो मुझे लगता है ये भी एक फैसिलिटी या एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगी। सो वो सब की दिक्कत मुझे नहीं लगता। और फिर भी पार्ट ऑफ ये सब के अलावा भी हम लोग बहुत विजिलेंट तरीके से ही आगे के ऑर्डर्स एक्सेप्ट करने वाले हैं, जहां पर हमें किसी तरह का ये बैलेंस शीट में चैलेंज ना हो कि हमें कैश को लेके स्ट्रेस आने वाला है। तो वहां पर अगर ऐसा लगेगा तो कंपनी टेम्परेरीली रेवेन्यू को सेक्रीफाइस करेगी, पर ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेगी जिससे कि हमें हमारे स्टेक होल्डर्स का पैसा या किसी तरह का वो रिस्क पे आए। ये हमारे थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है इस मामले में। ये सिद्धार्थ जी, हेलो, वन मोमेंट सर, दिस लाइन yes sir, his line is disconnected and we'll take that as the last question for today. I now hand the conference over to management for closing comments. Over to you sir. So thank you all of you, और डेफिनेटली और मैं एक तहे दिल से धन्यवाद करूंगा सबका जो एक ट्रस्ट ओसवाल में आप लोग बना के रखा हुआ है। सो रियली वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। Thank you. On behalf of IIFL Capital Services Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.